Hello dear students, how are you? I hope you all are well and doing perfect. So dear students, today we will continue our series on animal kingdom, and in today's lecture we will discuss about the left out basis of classification that we were unable to discuss in our last lecture. So without ado, let's start our lecture. So these were the certain bases of classification that we have to read. Out of them we have done level of organization, body symmetry and embryonic germ layers. The left out ones are body cavity, segmentation and notochord according to NCERT. These three are left and these three will be completed in today's lecture. So let's quickly revise the levels of organization, body symmetry and embryonic germ layers. उसके बाद अपन start करेंगे with the new lecture. So simplest level of organization is cellular. It is seen in sponges or phylum Porifera. Then tissue level of organization is little bit advanced over cellular level of organization, and it is seen in the coelenterate and its twin, that is Ctenophora. Then the next level of organization is organ level of organization, which is present in which evolved in, first time it was seen to happen that a organ has developed in case of phylum Platyhelminths, and it's also there in SK helminths. Then comes organ system level of organization, which is the advanced feature, most advanced feature when we consider level of organization, and it is present right from annelids to the phylum in which humans are present, that is Chordata. One thing to note down is that Platyhelminths is a phylum in which organ system system level of organization both exist. Primarily when we consider, then it is organ level of organization in Platyhelminths, but if sometimes if it is asked ki in which phylum both organ as well as organ system level of organization is observed, then we have to answer it as Platyhelminths. As already discussed in the last lecture, we have seen that in Platyhelminths a incomplete type of digestive system exists. ठीक है, so from there we can analyze. Okay, चले तो आगे चलें, और हमने फिर पढ़ा था basis of classification on the basis of symmetry. तो यहाँ पे longitudinal axis पे कट करने पर अगर body to be equal halves देती है तो फिर symmetrical है, otherwise asymmetrical है. तो asymmetrical में है अपने पास most of the sponges यानी most of the members of phylum Porifera. सिमेट्रिक में अगर एक से ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है जिससे कट करने पे टू इक्वल हाफ्स ऑब्टेन हो रहे हैं तो रेडियल, एक ही प्लेन है तो बाइलेटरल. रेडियल सिमेट्री इज सीन इन Coelenterata and its twin phylum, that is Ctenophora. And bilateral symmetry, which is an advanced feature, it evolved in Platyhelminths. Platyhelminths में पहली बार हुआ ये, and in us also the bilateral symmetry is there, that is Chordata. एक्सेप्शन क्या है बीच में कौन सा फाइलम एक्सेप्शन देता है? तो बीच में जो एक्सेप्शनल केस है दैट इज इन इकाइनोडर्मेटा. ठीक है, इकाइनोडर्मेटा के लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा भी था कि उसके अंदर रेट्रोग्रेसिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट है. उसका लार्वा जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता है, लेकिन जो एडल्ट फॉर्म है वो
रेडियल सिमेट्री को शो करता है, और इस तरीके का डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, ठीक है। देन on the basis of number of germ layers we have divided organisms as diploblastic and triploblastic. Diploblastic organisms में अपने पास आते हैं organisms in which 2 germ layers are present. Outer germ layer is called ectoderm and inner germ layer is called endoderm. बीच में भरा होता है एक gelatinous non-cellular medium which is called mesoglea. meso कहीं पे भी आया मतलब बीच में, ठीक है। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जिनमें 3 जर्म लेयर्स रहेंगी, आउटर एक्टो, बीच में मीजो एंड एकदम अंदर वाली एंडोडर्म। और याद रहे ये जर्म लेयर्स अपने को सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही मिलेंगी, ठीक है। अब अगर बात करो जो यंग वन बर्थ ले लेता है उसके अंदर ये जर्म लेयर्स नहीं होते हैं। ये जर्म लेयर्स का काम होता है टू गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर जो एग्जांपल्स हैं अपने पास वो है सिलेंट्रेटा और इसका ट्विन, सिलेंट्रेटा और उसका ट्विन फाइलम दैट इज टिनोफोरा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर स्टार्टिंग हुई कहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर की? प्लेटीहेल्मिन से। तो आप देख रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्स एवोल्यूशन में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि सबसे ज्यादा जो चीजें एडवांस फीचर्स हैं वो प्लेटीहेल्मिन से ही स्टार्ट हुए, धीरे धीरे डेवलप करते गए और सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा तक पहुंचे, ठीक है। ठीक, तो आज से हम लोग अपना जो स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉडी कैविटी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉडी कैविटी। सो व्हाट इज अ बॉडी कैविटी? इट इज अ स्पेस इनसाइड एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ठीक है। और एक ट्रू बॉडी कैविटी को हम लोग एक टर्म देते हैं विच इज कॉल्ड एज सिलोम। अ ट्रू बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सिलोम। अ ट्रू बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सिलोम। याद रखें इस चीज को, अ ट्रू बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सिलोम। देन व्हाट इज अ ट्रू बॉडी कैविटी या व्हाट इज अ ट्रू सिलोम? व्हाट इज अ सिलोम? सिलोम क्या है एक्चुअली में? तो देखिए, ध्यान से देखिए, अ कैविटी inside the body which contain या which is lined by, ठीक है, which is lined by, which is lined by mesoderm, which is lined by mesoderm on both the sides, on both the sides। यानी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक कैविटी है, ठीक है, लेट्स से कि भाई ये एक बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैंने कट किया, ठीक, तो एक कैविटी बनी, ये वाली कैविटी। अब ये कैविटी सिलोम कब कहलाएगी? जब इसके इस तरफ भी मीजोडर्म हो और इस तरफ भी मीजोडर्म हो। यानी अगर ये कैविटी यहां से और यहां से दोनों तरफ मीजोडर्म से ही लाइन है तभी ये ट्रू कैविटी कहलाएगी। तो याद कर लीजिए, अ कैविटी इनसाइड द बॉडी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स में मीजोडर्म अगर है तभी वो कैविटी क्या कहलाएगी? सिलोम कहलाएगी। तभी वो कैविटी क्या कहलाएगी? ट्रू बॉडी कैविटी कहलाएगी। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये चीज कि सिलोम तभी होगी, तभी ये वर्ड यूज करेंगे सिलोम, तभी एक कैविटी को आप सिलोम बोलेंगे, तभी एक कैविटी को आप ट्रू बॉडी कैविटी बोलेंगे जब वो दोनों तरफ से मीजोडर्म से लाइंड हो। तो क्या ट्रू बॉडी कैविटी सिलेंट्रेट्स में हो सकती है? क्या ट्रू बॉडी कैविटी टिनोफोरा में हो सकती? नहीं, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक का तो एक कैरेक्टर ही नहीं है।
भाई डिप्लोब्लास्टिक का ये कैरेक्टर कैसे नहीं है? क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म होता ही नहीं है। ठीक, तो ये ट्रू बॉडी कैविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक के ही केस में आएगा। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक animals can only show सिलोम सिर्फ उन्हीं में होगा, नॉट ऑल, सभी में नहीं होगा, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक ही क्या करेक्टर है, सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक में होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। सो लेट्स सी द डिवीजन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिलोम। सो ये एक डायग्राम मैंने लिया है एनसीईआरटी से। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कट करके एक सेक्शन दिखाया है, जिसमें आपको दिख रहा है बाहर वाली लेयर है एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर है एंडोडर्म और बीच में एक कैविटी है। ठीक है, बीच में एक कैविटी है, लेकिन ये कैविटी कहीं पे भी लाइंड नहीं है। किससे? ये कैविटी कहीं पे भी लाइंड नहीं है मेसोडर्म से, इसलिए इस कैविटी को हम लोग सिलोम नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सिलोम एब्सेंट है, तो इसमें सिलोम एब्सेंट है। ठीक है, इस पे सिलोम एब्सेंट है। फिर हम इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में अपने को क्या दिख रहा है? अंदर एंडोडर्म, फिर बाहर एक्टोडर्म, और ये आपको जो पाउचेस दिख रहे हैं, ये गोल 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 पाउचेस, दीज आर पाउचेस ऑफ मेसोडर्म। These are pouches of mesoderm। और फिर यहां पे ये जो खाली स्पेस है, दिस इज ए कैविटी। क्योंकि इस कैविटी को भी मेसोडर्म में दोनों तरफ से लाइन नहीं किया है, दोनों तरफ से घेर नहीं रखा है। इस कैविटी को भी, ये जो कैविटी है, ये कैविटी, ये कैविटी, ये कैविटी, ये कैविटी, इसको भी मेसोडर्म ने दोनों तरफ से क्योंकि लाइन नहीं कर रखा है, बस इस कैविटी के इर्द गिर्द लेकिन मेसोडर्म है, इसलिए इसको मतलब एसिलोमेट तो नहीं बोलेंगे, सिलोम एब्सेंट ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कैविटी है लेकिन दैट इज नॉट अ ट्रू सिलोम। ठीक है, दैट इज नॉट अ ट्रू सिलोम। और ट्रू सिलोम जिसमें नहीं होती है उसमें पाउचेस ऑफ मेसोडर्म प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर ट्रू सिलोम नहीं है तो उसको बोला जाता है सूडोसिलोम। तो इस तरीके की सिलोम जिसपे पाउचेस होते हैं मेसोडर्म के, दैट इज कॉल्ड सूडोसिलोम। याद रहे बेटा, सूडो का मीनिंग होता है फॉल्स, तो यहां पे फॉल्स बॉडी कैविटी दिखती है, इट इज नॉट अ ट्रू बॉडी कैविटी। क्लियर? देन कम्स द थर्ड स्ट्रक्चर। यहां पे आप देख पाएंगे कि जो बाहर वाली लेयर है ये, दिस इज एक्टोडर्म। ठीक है, जो अंदर वाली लेयर है ये, जो अंदर वाली लेयर है ये, दिस इज एंडोडर्म। ठीक, फिर आप देखेंगे जो येलोविश कलर की है, दिस इज मेसोडर्म, और ये अंदर वाली ये भी मेसोडर्म है, ये दोनों मेसोडर्म है। यहां पे आप देख रहे हैं दिखाया भी गया है ना, ये भी मेसोडर्म, ये भी मेसोडर्म, और ये रही कैविटी, ये रही कैविटी। तो ये कैविटी इस तरफ भी मेसोडर्म से लाइन है, इस तरफ भी मेसोडर्म से लाइन है, इसलिए ये कैविटी को हम लोग बोलेंगे कि ये है एक्चुअल एक सिलोम। दिस कैविटी इज ए सिलोम। तो ये है ट्रू बॉडी कैविटी। ठीक, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि बीच बीच में खाली स्पेस वाला क्या है। तो बीच में जो खाली स्पेस है ये एक्चुअली में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कैविटी है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कैविटी है जिसे हम बोलते हैं गट। ठीक, तो बीच वाला जो खाली स्पेस है, दिस इज द कैविटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच इज लाइंड बाय एंडोडर्म, जो कि एंडोडर्म से लाइन होती है, उसको बोलते हैं गट। दिस इज नॉट अवर बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी नहीं होती है। ठीक, अब ध्यान दें, तो हम अब डिस्कस करें कि भाई
एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। तो एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर रखने वाले एनिमल्स, यानी प्लेटीहेल्मिन्थ्स। इनमें पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर आया था, ठीक है, लेकिन ये बॉडी कैविटी डेवलप नहीं कर पाए थे। देन सूडोसिलोमेट, यानी जिन्होंने हल्की सी एक शुरुआत करी सिलोम डेवलप करने की, दे आर सूडोसिलोमेट्स, जो आएंगे इन द ग्रुप एसके हेल्मिन्थ्स, यानी राउंड वॉर्म्स में। और फाइनली आते हैं सिलोमेट्स। सिलोमेट्स जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी है, जो स्टार्ट होते हैं एनालिडा से और खत्म होते हैं कॉर्डेटा पे, यानी हम लोगों में ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। क्लियर? इतना सा है। अब देखिए यहां पे दिखाया इन्होंने, यहां पे एक डायग्राम में लेके आया हूं आपके लिए। इसमें सबसे पहले हैं फ्लैटवॉर्म्स यानी प्लेटीहेल्मिन्थ्स। Platyhelminths are basically acylomates. These are acylomates. तो इनकी एक बॉडी को कट किया, कट करने के बाद दिखाया कि इनमें एक बॉडी कवरिंग है। ये बॉडी कवरिंग डेवलप होती है किससे? एक्टोडर्म से। ये किससे डेवलप होती है? एक्टोडर्म से। फिर बीच में एक टिश्यू फिल्ड रीजन है जो डेवलप हुआ है किससे? मीजोडर्म से। ठीक, फिर इनके पास ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और उसकी ओपनिंग है, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप हुआ है किससे? एंडोडर्म से। ठीक है, इसी को यहां पे इन्होंने थोड़ा 3D फॉर्म में दिखाने की कोशिश करी है। तो कहीं पे भी सिलोम का नामो निशान नहीं है, तो द ऑर्गेनिजम्स दे आर एसिलोमेट। तो उस पे कहीं पे भी सिलोम नहीं दिख रहा है, सो द ऑर्गेनिजम्स दे आर एसिलोमेट। देन यहां पे दिखाया फ्लैटवॉर्म्स, एनालिड्स को, जो कि सिलोमेट होते हैं। यानी यहां पे दिखाया है एनालिडा यानी अर्थवॉर्म वाले को, ठीक है, अर्थवॉर्म वाले को, जो कि ट्रू सिलोमेट है, जिनमें सिलोम प्रेजेंट है। तो इनकी बॉडी कवरिंग है जो किससे डेवलप करी? एक्टोडर्म से। टिश्यू फिल्ड रीजन है विच इज मीजोडर्म। ठीक, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो किससे डेवलप किया? एंडोडर्म से। और आप देख रहे हैं दोनों मीजोडर्म की जो लाइनिंग है उसके बीच में जो कैविटी है दैट इज सिलोम। ये इस तरफ दोनों, ये लाल वाला रीजन क्या है? टिश्यू फिल्ड मीजोडर्म। ये लाल वाला रीजन क्या है? टिश्यू फिल्ड मीजोडर्म। और ये जो व्हाइट वाला रीजन है, ये खाली जगह है, दैट इज सिलोम। ठीक, देन आते हैं सूडोसिलोमेट्स में, जिसमें आते हैं निमेटोड्स। निमेटोड्स का मतलब एसके हेल्मिन्थ्स। निमेटोड्स का मतलब एसके हेल्मिन्थ्स, दैट इज राउंड वॉर्म। तो राउंड वॉर्म में भी इन्होंने वही दिखाया कि एक कैविटी है विच इज लाइंड only on one side by mesoderm, in which scattered mesoderm will be present, जो इन्होंने यहां पे मेंशन नहीं किया लेकिन मैं आपको बता देता हूं। तो scattered mesoderm अगर प्रेजेंट है, पाउचेस में प्रेजेंट है, तो that is सूडोसिलोमेट, जो कि एसके हेल्मिन्थ्स यानी राउंड वॉर्म में देखने मिलता है। तो इस तरीके से आप अपनी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड सिलोम, उसके बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, ध्यान से इस फिगर को देख लीजिएगा। अब फर्दर डिस्कस करते हैं रोल ऑफ सिलोम। सिलोम का रोल क्या है? तो सबसे पहले इंटरनल, या हम बोले प्रोवाइड स्पेस फॉर द growth of इंटरनल ऑर्गेन्स। जब इंटरनल ऑर्गेन्स वगैरह साइज में बढ़ेंगे तो उनको बढ़ने के लिए एक स्पेस चाहिए, तो ये वो सिलोम कैविटी है, खाली जगह है, तो वो स्पेस मिल जाता है।
सबसे पहले तो भाई कैविटी तो कंफ्यूज नहीं हो, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। दूसरा, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर के भाई खाली जगह है, बाहर एक लाइन कैविटी, एक एरिया है सरफेस, अंदर एक एरिया है, बीच में कैविटी है जिसमें कुछ फ्लूइड वगैरह फिल्ड होगा। अब तुम मुक्का मारो तो ये जितना भी प्रेशर है वो उस फ्लूइड में जाके मिनिमाइज हो जाएगा और आपको इंजरी वगैरह, जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो इंजरी वगैरह से बच जाते हैं। तो शॉक एब्जॉर्बर के जैसे काम करता है और इसमें एक फ्लूइड भरा होता है कॉल्ड सिलोमिक फ्लूइड। ओके, फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड सिलोमिक फ्लूइड। तो ये सिलोम का रोल और उसका ये थोड़ा सा आप याद रखें। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि सेगमेंटेशन क्या चीज होती है। देखो, कुछ एनिमल्स में उनकी बॉडी सर्टेन सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। जैसे हम लोग अपनी बात करें तो हमारी बॉडी भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। हमारा क्या क्या सेगमेंट है देखो बताता हूं। जैसे एक सेगमेंट है जिसमें हमारा हेड पोर्शन लाई कर रहा है, एक सेगमेंट है जिसमें हमारा ये लंग्स वगैरह लाई करता है, एक पोर्शन है जिसमें हमारा इंटेस्टाइन वगैरह लाई करता है। तो अगर हम अपनी बॉडी को सेगमेंट वाइज डिवाइड करना चाहें तो वो बाहर से भी सेगमेंट वाइज डिवाइडेड है और अंदर से भी सेगमेंट वाइज डिवाइडेड है, ठीक। आवर बॉडी इज सेगमेंटेड। हेड रीजन सिफेलिक, ये सिफेलिक सेगमेंट है। देन आता है चेस्ट वाला रीजन जहां लंग्स है, उसको बोलते हैं थोरासिक रीजन। फिर है अपना इंटेस्टाइन वाला रीजन जिसे बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। फिर लोअर एब्डोमिनल रीजन। ऐसे हमारी बॉडी सेगमेंटेड है बाहर से भी और अंदर से भी, ठीक। तो बॉडीज ऑफ सर्टेन animals are divided into segments, segments में डिवाइड होती है। और सेगमेंट में डिवाइड हो जाने के फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिनोमिना of showing segmentation is called मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? मेटामेरिज्म, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखते हैं आगे। तो इसमें क्या रहेगा देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं ट्रू सेगमेंटेशन में क्या होगा।
ट्रू सेगमेंटेशन में क्या होगा कि बॉडी इज डिवाइडेड into several segments. ठीक है, अब अगर आपको मान लो हमने तो अपना बताया कि ऐसे ऐसे सेगमेंट्स हैं हमारे में, अगर आपको और ट्रूली देखना है तो किसी भी कॉकरोच वगैरह को पकड़ो, ठीक है, या अर्थवर्म को देखो, अर्थवर्म में ऐसे नहीं रिंग 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 के बहुत सारे ऐसे लगे, बॉडी डिवाइडेड है बहुत सारे सेगमेंट्स में। वैसे ही आप अगर एक कॉकरोच को पकड़ो उल्टा करो तो आप फिर से देखोगे बॉडी में वो डिविजन्स, वो सेगमेंट्स आपको दिखेंगे, ठीक। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेगमेंट्स एंड दीज सेगमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट। ये सेगमेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। यानी हमारा जैसे जो थोरैसिक सेगमेंट है वो एब्डोमिनल सेगमेंट पे डिपेंडेंट है, एब्डोमिनल सेगमेंट कुछ फंक्शंस के लिए थोरैसिक पे डिपेंडेंट है, ठीक। तो दीज सेगमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड फंक्शन टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, मिल करके काम करते हैं, कहने का मतलब है फंक्शन टुगेदर, ठीक। एंड इसमें एक स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न होगा, स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न इज देयर। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोरैसिक सेगमेंट से ही ग्रोथ हो सकती है या सिर्फ एब्डोमिनल सेगमेंट ही ग्रोथ से ही ग्रोथ हो सकती, नहीं, एक स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न होता है जो फॉलो होगा। और ये ट्रू सेगमेंटेशन अपने को देखने मिलता है इन केस ऑफ एनेलिडा यानी अर्थवर्म वाले फाइलम में, ठीक है, आर्थ्रोपोडा यानी इंसेक्ट वाले फाइलम में जिसमें कॉकरोच आता है, मैं बता रहा हूं, ठीक है, एंड हायर एनिमल्स में यानी हम लोगों में भी, और बाकी एनालिट्स के बाद जितने हैं उनमें कुछ में सेगमेंटेशंस होते हैं और कुछ में कहीं कहीं पे आपको ऐसे एज इट इज दिखाई नहीं देंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया ट्रू सेगमेंटेशन। फिर एक है फॉल्स सेगमेंटेशन या सूडो सेगमेंटेशन, ठीक, फॉल्स या सूडो सेगमेंटेशन। इसमें क्या खास है ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फॉल्स या सूडो सेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है कि बॉडी डिवाइडेड है सेगमेंट में, बॉडी सेगमेंटेड है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, बॉडी इज सेगमेंटेड और हर एक सेगमेंट इंडिपेंडेंट है, हर एक सेगमेंट अपना खुद से सरवाइव कर रहा है, दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है। तो ईच सेगमेंट इज इंडिपेंडेंट एंड फंक्शनल, सारा काम खुद से कर लेता है अपना, ठीक है। एंड तीसरी चीज ये है कि इसमें जो ग्रोथ है वो एंटीरियर पोर्शन से यानी आगे के हिस्से से होती है, ठीक है, ग्रोथ फ्रॉम एंटीरियर सेगमेंट, ग्रोथ फ्रॉम एंटीरियर सेगमेंट ओनली, ठीक। और इस तरीके का सेगमेंटेशन अपने को देखने मिलता है इन केस ऑफ टेपवर्म। टेपवर्म में अपने को ये इस पैटर्न का सेगमेंटेशन देखने मिलता है, विच इज नॉट अ ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन के लिए याद रखिए बॉडी में सेगमेंट्स तो बने होंगे लेकिन हर एक सेगमेंट जो रहेगा वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट रहेगा, मिल के काम करने वाला रहेगा। हम लोग भी एक ट्रूली सेगमेंटेड एनिमल हैं, ठीक, क्लियर। चलिए अब आते हैं एक स्ट्रक्चर के ऊपर विच इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। व्हाट इज अ नोटोकॉर्ड?
नोटोकॉर्ड क्या होता है? देखिए, तो ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक। देन ये प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी पे, ठीक। उसके बाद ये स्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, मतलब स्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये डॉर्सल साइड क्या होती है, ठीक है। तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं कि डॉर्सल और वेंट्रल दो साइड्स होती हैं, समझिएगा, डॉर्सल और वेंट्रल। तो सबसे पहले डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड और वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट साइड, ठीक है। डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड, वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट साइड। जिसमें वेंटर का मतलब होता है, वेंटर आपने ये टर्म पहले भी पढ़ा है ब्रायोफाइट्स रेडोफाइट्स में, वेंटर होता है आर्चिगोनिया में, वेंटर मतलब वो स्वलन पोर्शन। तो एक्चुअली वेंटर का मीनिंग क्या होता है? बेली। बेली का मतलब अपना पेट। तो जिस तरफ अपना पेट है, जब चल रहे हैं, तो जब हम चल रहे हैं, जैसे मान लो मैं चल रहा हूं, ऐसे आगे स्टेप कर रहा हूं, ठीक, तो मेरी बॉडी का फ्रंट साइड जो है वो है वेंट्रल। वेंट्रल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरा पेट इस तरफ है, वेंट्रल का मतलब होता है बेली, ठीक। और जो पीछे वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं डॉर्सल, ठीक। तो जो फ्रंट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और जो बैक पोर्शन है दैट इज कॉल्ड डॉर्सल पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और वेंट्रल का मतलब बेली है, वहां से आप समझ सकते हैं, ठीक। तो नोटोकॉर्ड इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर या कह सकते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर। इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक। अब इन सम ऑर्गेनिजम्स या इन सम एनिमल्स इट इज present only at embryonic stage, कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रेजेंट होती है, बाद में खत्म हो जाती है, बाद में नहीं होती नोटोकॉर्ड, ठीक है। Then in some animals it is present only up to larval stage। तो कुछ एनिमल्स में ऐसा देखा गया है कि भाई ये उनके लार्वा में होती है लेकिन एडल्ट में नहीं होती है। Then in some animals it is present all through the life, यानी हर समय प्रेजेंट रहती है। तो इस तरीके के एनिमल्स हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक। इनको भी पर्टिकुलर कुछ कैटेगरी को नाम है जो हम जब कॉर्डेटा फाइलम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी के लिए ये तो मैं हटा देता हूं इधर।
अभी के लिए हम ये देखें कि भाई ये एनिमल्स हैं कुछ जिनमें उनके लाइफ में कभी ना कभी तो नोटोकॉर्ड थी, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके लाइफ में हमेशा नोटोकॉर्ड है, ठीक। तो एनिमल्स इन विच notochord is seen at any stage of life, जिनमें लाइफ में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड तो रही है, ठीक है, तो रही है। उस तरीके के एनिमल्स को एक फाइलम में रखा जाता है विच इज कॉल्ड फाइलम कॉर्डेटा, जिनमें कॉर्डेट नोटोकॉर्ड है, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। हम लोग उसी फाइलम के मेंबर हैं, याद रखें, ठीक है। तो एक ही फाइलम ऐसा है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और उस फाइलम में आने वाले सभी ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स, ठीक, फाइलम कॉर्डेटा। और जिनमें नहीं होता है दे आर नॉन कॉर्डेट, ठीक। एनिमल्स in which notochord never develops they are non-chordates, they are non-chordates। तो कॉर्डेटा के पहले के सभी फाइलम दे आर नॉन कॉर्डेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोटोकॉर्ड। अब जब हम नोटोकॉर्ड की बात कर रहे होते हैं तो हम नोटोकॉर्ड को कंफ्यूज कर देते हैं एक और स्ट्रक्चर से विच इज कॉल्ड नर्व कॉर्ड, ठीक है, विच इज कॉल्ड नर्व कॉर्ड। तो देखिए ध्यान से, नोटोकॉर्ड जो है वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि जब एम्ब्रियो बन रहा है तो एम्ब्रियो को सपोर्ट देने के लिए आती है ये, ठीक। इट अराइज एट एम्ब्रियोनिक स्टेज टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो को सपोर्ट देने के लिए आती है, उसको रिजिड रखने के लिए आती है कि कहीं वो कहीं डैमेज ना हो जाए, इसलिए आती है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू डेवलप इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में डेवलप होने वाला ये पहला स्ट्रक्चर है, याद रखें, ठीक। तो दैट इज नोटोकॉर्ड। क्लियर? ये किस साइड पे आता है? ये डॉर्सल साइड पे अराइज होता है। ये किस साइड पे अराइज होता है? तो ये डॉर्सल साइड पे अराइज होता है। अब आती है बारी नर्व कॉर्ड की। तो जो नर्व कॉर्ड है, नाम से लग रहा है नर्व, नर्वस सिस्टम बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? इट डेवलप टू फॉर्म नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्व कॉर्ड का जो एंटीरियर पोर्शन है, आगे वाला हिस्सा है, उससे ब्रेन बनता है, ठीक है। एंटीरियर पोर्शन गिव राइज टू ब्रेन। तो कहीं पे भी आसपास भी नहीं है दोनों, ठीक है भाई। नोटोकॉर्ड स्केलेटन है, सपोर्ट कर रहा है, उससे तो नर्वस सिस्टम बन रहा है। सेंसरी ऑर्गन्स के जो फंक्शनैलिटी है वो डिपेंडेंट है इस पे, ब्रेन बन रहा है इससे भाई, ठीक है। और ये डेवलप होता है बीनीथ द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के अबव द नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड के ऊपर की तरफ डेवलप करती है,
ठीक है, अबव द नोटोकॉर्ड। और तो नोटोकॉर्ड जो है वो डॉर्सल साइड पे है एंड डेवलप बीनीथ द नर्व कॉर्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, डिफरेंस में याद रखो क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है और कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी बनाते हैं। अब हम लास्ट एक चीज देख लेते हैं, बॉडी प्लान्स इन एनिमल्स एंड डिफरेंट एनिमल्स के क्या क्या बॉडी प्लान्स होते हैं। तो सबसे पहले लूज सेलुलर बॉडी प्लान जो है वो स्पॉन्जेस में है, ठीक, ये वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला लूज सेलुलर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेल्स आर प्रेजेंट विच आर लूजली अरेंज्ड जेली के जैसे, मतलब लूजली अरेंज, एकदम स्लाइम, ठीक है, ग्रीसी इस तरीके का रहेगा, वो लूजली अरेंज रहता है। तो ये सबसे सिंपल बॉडी प्लान है जो एनिमल्स में शो होता है, लूज सेलुलर। देन आता है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक समझने के लिए आप समझिए ब्लाइंड ट्यूब को, जैसे टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब ब्लाइंड ट्यूब है, यानी जो एक तरफ से खुली है और दूसरी तरफ से बंद है। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान क्या होता है, इट हैज ओनली वन ओपनिंग। तो अगर कोई ऐसी एनिमल की बॉडी है जिसमें एक ही ओपनिंग है, उसी से इंजेक्शन उसी से इजेक्शन होगा, तो सच अ बॉडी प्लान इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। सच अ बॉडी प्लान इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। मतलब एक तरफ से खुला है दूसरी तरफ से बंद है, तो आप देखेंगे अगर आंख लगा के तो उसके आगे का कुछ दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट पोर्शन से तो ये क्लोज्ड है, ठीक है। अब एक ट्यूब आपके पास है, दोनों तरफ से खुली हुई है, तो एक तरफ से आप आंख से देखेंगे तो दूसरी तरफ से भी आपको दिखेगा, ठीक। देन आता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं टू ओपनिंग्स, वन फॉर इंजेक्शन दैट इज माउथ और दूसरा है फॉर इजेक्शन दैट इज एनस, ठीक है। तो ये तीन तरह के बॉडी प्लान है, आपको डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूं। ये सबसे पहला बॉडी प्लान आपके सामने है, लूज सेलुलर बॉडी प्लान, ठीक। इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे सेल्स हैं, लूजली अरेंज है, उनके बीच बीच में कहीं कहीं पे स्पेसेस हैं, इस स्पेस से बाहर से फ्लूइड वगैरह आ जाता है, ये स्पेसेस हैं, लूजली अरेंज है ये, तो स्पेसेस हैं, ठीक। इनसे चीजें अंदर आ जाती हैं और फिर ये चीजें होते हुए यहाँ पे सबको सर्कुलेट करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। तो ये एक स्पॉन्ज का बॉडी प्लान है विच इज लूज सेलुलर। देन ये है आपका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जो हाइड्रा में देखने मिल रहा है, ठीक। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक ही ओपनिंग है, यही माउथ भी है और यही इसका एनस भी है, क्योंकि यहीं से खाएगा भी, यहीं से ये वेस्ट बाहर निकालेगा भी। तो दिस इज अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, एक ऐसी ट्यूब जिसकी एक ही ओपनिंग है, ठीक। देन आता है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसमें आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर खाना खाने के लिए माउथ है, ठीक, और दूसरा पर्टिकुलर वेस्ट एक्सक्रीट करने के लिए एनस है, ठीक, क्लियर। तो ये होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब देखिए इसमें दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है प्रोटो या प्रोटेरोस्टोमियम और एक होता है ड्यूटेरोस्टोमियम। देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में जिसमें माउथ पहले डेवलप करे और एनस बाद में करे, है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान वाले एनिमल्स। लेकिन अगर उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे पहले माउथ डेवलप करे तो दे आर प्रोटेरोस्टोमियम, और अगर पहले एनस डेवलप करे तो दे आर ड्यूटेरोस्टोमियम, ठीक। तो एनिमल्स in which
माउथ डेवलप्स फर्स्ट इन एम्ब्रियो। तो अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे पहले माउथ डेवलप करे तो दे आर प्रोटेरोस्टोमियम, और अगर पहले एनस डेवलप करे तो दे आर ड्यूटेरोस्टोरियम। तो एनिमल्स इन विच एनस डेवलप फर्स्ट, एनस डेवलप फर्स्ट इन एम्ब्रियो, जिसमें पहले एनस डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो में, तो दे आर ड्यूटेरोस्टोमियम। ह्यूमंस ड्यूटेरोस्टोमियम है, हम लोग में पहले एनस डेवलप करता है, बाद में माउथ डेवलप करता है, ठीक है, एम्ब्रियो में। तो दैट इज वी आर ड्यूटेरोस्टोमियम, और बाकी कुछ प्रोटेरोस्टोमियम है। आप एग्जांपल ढूंढिएगा इसके, ठीक। स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग, तो पहली ओपनिंग अगर प्रो मतलब माउथ है तो फिर दैट इज प्रोटेरोस्टोमियम, और अगर पहली ओपनिंग जो डेवलप कर रही है वो दूसरी वाली एनएस है तो दैट इज ड्यूटेरोस्टोमियम, ठीक। याद रखो ये सब चीजें भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, हमने सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप अच्छे से एनसीईआरटी की थरो रीडिंग कर लीजिए, पहले दूसरे तीसरे पेज की, ठीक, और आप ये सभी अच्छे से समझ पाएंगे। और बहुत ही सिंपल है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा एक फ्लो चार्ट से, जहां पे सारे क्लासिफिकेशंस होंगे, उनके बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड करेंगे, ठीक, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे अपना पहला फाइलम का स्टडी। अच्छे से पढ़ लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके आगे पूरा एनिमल किंगडम बहुत इजी है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको पता है, मेरे से आपको डाउट्स में पूछ लेना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।